کرنا آپ نے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم نے 75 سال سے اس ریاست کی ذمہ دی، باقی اور چھوڑے وہ کیا ہمارے لیے کرتے، وہ تو ریاست بھی نہیں بچا سکے. انہوں نے تو وہ ریاست جس کو مہاراجا گلاب سنگھ کے ٹائم سے اس کو بھی ختم کر دیا. اور کروایا کن سے؟ جو کہتے تھے ہم ہمدرد ہیں. اب مجھے یہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی ہمدردی وہ جماعتیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے ہمدرد ہیں. اللہ، میں خدا نہ کرے بدری جی کا نام ہی ختم کروں تو بدری جی کا میں ہمدرد کیسے؟ الٹا تو جتنا میں ان کا نام بڑھاؤں گا وہ ہمدردی ہوئی نہیں. آپ سب جب یہاں آج ان کے ساتھ آئے تو ان کا نام بڑھانے کے لیے آئے نا، نام ختم کرنے کے لیے تو نہیں آئے. ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے. مودی جی کم از کم ہمیں یہ بتائیے اس میں ہمارا بلا کیا تھا. آپ کا بلا تو اس میں نکلا کہ آپ کی انا تھی کہ 370-35 کو ختم کرنا ہے. بالکل آپ نے کیا، ایک وعدہ اپنے لوگوں سے کیا تھا، اچھا کیا شاید آپ کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو کوئی اچھا نہیں ہوا. لیکن ہماری ریاست کیوں ختم کی؟ ہم کو یو ٹی کیوں بنایا؟ ہمارے 2 حصے کیوں کیے؟ مجھے لگتا ہے شاید ان کو لگتا ہے کہ جتنا کمزور کیا جائے ہندوستان کے تاج کو اتنا ان کی حکومت شاید مضبوط ہو. یہ کب ہوا ہے؟ ہم تو سر پہ ہیں، ہمیں تو خدا نے سر پہ رکھا ہے. اس ملک کے تاج کی جگہ ہم نے تو نہیں بنائی نا، یہ تو اللہ نے جگہ بنائی ہے، بھگوان نے بنائی ہے. تو ہمیں تو جگہ وہی ہے. آپ ہمیں یو ٹی کرو، آپ ہمیں کوئی اور چیز بھی کرو، رکھنا تو سر پہ ہی پڑے گا. ابھی امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. مودی صاحب ہمارے کسان کا سوچنا تھا. آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ ہم امریکہ کو خوش کیسے کریں، لیکن ہمارے کسانوں کا کیوں نہیں سوچا؟ ہمارا کسان، اس کی تو شادی بھی اسی پہ، اس کا تو ماتم بھی اسی پہ، اس کا تو رہن سہن بھی اسی پہ، اس کا تو علاج بھی اسی پہ. ہمارے تو کچھ ایکڑ ہوتے ہیں، بلکہ ایکڑوں میں ہم گن سکتے ہیں کتنوں کے پاس ایکڑ ہے، باقی کنالوں میں ہوتا ہے. وہاں تو ہزاروں ایکڑ والے ہیں، تو مشینوں سے کام ہوتا ہے. ہم کب ان کا کمپٹیشن کریں گے؟ مجھے تو اس میں ہمارے کسان کے لیے کوئی بھلائی نہیں دکھی. مجھے تو اس میں جو ہمارا سیب اگانے والا ہے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں دکھی. ایک سائڈ سے کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وقار کا خیال رکھیں گے، اور وقار کیا ہوتا ہے؟ وقار تو ہے جب آپ لوگوں کی زندگیاں آسان بنائے. جب آپ نے لوگوں کی زندگیاں آسان نہیں بنائی تو کیا ہوگا؟ نیشنل کانفرنس کی سرکار بنی، لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اکثریتی طبقے نے ان کو دے دیا، باقیوں نے بی جے پی کو دے دیا. ایم ایل اے تو وہ سب بن گئے، کچھ وزیر بن گئے، کچھ اپوزیشن کے لیڈر بن گئے، لیکن لوگوں کے لیے جیسے کچھ نہیں ہے. بندر باٹ کی لڑائی جو اندر اسمبلی میں ہم روز دیکھتے ہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ کیا یہ الیکشن یہی بندر بانٹ کے لیے تھا؟ مجھے معلوم ہے ہم سب میں سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے یا اور کوئی. کیوں؟ اگر ہم ڈرتے ہیں تو ہم خدا سے ہی ڈرتے ہیں، بھگوان سے ہی ڈرتے ہیں، گرو سے ڈرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح سے سیاستدان ہمیں مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہمیں تو کہیں جاگنا پڑے گا. مذہب ہمارے دل میں اور ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، نہ سیاست میں ہونا چاہیے، نہ سڑک پہ ہونا چاہیے. مذہب کی سیکھ تو ہر ایک کو ہے کہ انسان اور انسانیت کسے کہتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں
या हमारे बच्चे आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 50 करोड़ रुपया फार्म खाली बेचे सरकारों ने इनको। भाई यही 50 करोड़ रुपया इनको वापस दे दो, कम से कम इनके माँ बाप के ये पैसे तो बच जाएंगे। नौकरी तो आप देने से रहे, और जिनको देते हो वो अपने चाहतों को देते हो। आज मीटर लग गए, पहले पहले तो सब खुश कि चलो जनाब बिल तो अब बहुत कम आ गया। अब जब देख रहे हैं ये तो 4 गुना हमारा बिल भी आ रहा है। और जहां असल बिजली की चोरी हो रही है वहां पर अभी भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर सरकार बाहर से 3000 मेगावाट बिजली ला रही है, ये बताए ना किसको दे रही है। अगर इंडस्ट्री को 1200 मेगावाट दे रही है, क्या 1200 मेगावाट के पैसे उनसे ले रही है? हमारे लोगों से तो 1800 मेगावाट के पूरे जम्मू वासियों से भी और कश्मीर वासियों से भी ले रहे हो। क्या आप वहां से ले रहे हो? क्या आप अपने सरकारी दफ्तरों से ले रहे हो? क्या आप कंटोनमेंट से ले रहे हो? कहने का मतलब है कि आम आदमी पे बोझ बढ़ाना है। कैसे ये दब जाएगा? क्यों? इसकी जबान ही नहीं है, इसकी कोई सुनता नहीं है। जिस दिन वोट की बात आती है उस दिन ये इसको जज्बात में डाल देते हैं कि मजहब खतरे में आ गया। अब मुझे बताइए, भला एक सरकार जो वोट लेती है कि हम आपके मसले हल करेंगे, सरकार में आने के बाद जब कल वो कहती है कि हम तक कुछ नहीं है, तो भैया फिर जाओ घर बैठो। और जहां आपको अपने लोगों को ओहदे देने हैं, अपने लोगों की मसले मसाइल हल करने हैं, वहां तो आपके पास इख्तियारात हैं। जहां हमने कल ये बात कही थी कि हमें जितने गांव दिए दिल्ली ने दिए, मतलब है दिल्ली में जो सरकार बनती है, इसलिए हमें दिल्ली को साथ चलाना पड़ेगा, ये हकीकत है। क्यों? हमारे हमसाया पाकिस्तान, हमारे हमसाया चाइना, जोग्राफिकली हमारी ऐसी पोजीशन है कि हम भारत को जितना मजबूत रखेंगे उतना हमारी मजबूती है। तो भारत की मजबूती तभी है जब भारत की सरकार के साथ हम ऑपरेशन करेंगे। ये बात कहने पे हम तो हो गए एजेंट उनके। आज आप कहते हो भाई मिलना तो जरूरी है वजीर आजम से, होम मिनिस्टर से, सरकार कैसे चलेगी? भाई जब कल हमने बोला था तब तो ये कुफर कर दिया तुम लोगों ने, तब तो तुम लोगों ने कहा हम एजेंट है। तो आप कौन हो? मेरा सवाल बीजेपी से है। कल बीजेपी कहती थी कि खानदानीवाद है, हम खानदानी जमातों के खिलाफ हैं। भाई बीजेपी वालों, जिस वक्त आपको सरकार बनानी पड़ती है आप तो 24 घंटे भी नहीं देते हो। आप तो पीडीपी के खिलाफ ये जंग लड़ रहे थे कि वो खानदानी जमात है, और जब सरकार बनाने की बात आई 24 घंटे में उनके साथ ही सरकार बनाई। कहने का मतलब है कि ये ड्रामाबाजी है। ये ड्रामाबाजी हमने अब काफ़ी देखी है, बीजेपी भी इसमें काफ़ी एक्सपोज हो गई है। आज ये कहा जाता है तो वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए, उनकी ज़मीन के हुकूक क्यों नहीं हाल तक किए जा रहे? उनको क्यों लड़का के रखा जा रहा है? भाई वो आए यहाँ, ज़मीनें वो कल्टीवेट कर रहे हैं, उन पे कोई बात नहीं है। ये पता नहीं किस दिन इनको क्या मूड होगा, क्या करेंगे। उस दिन कहेंगे कि साहब उठो, ये तो आपका नाजायज कब्जा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक बार तो खुद ही ये फैसला करना पड़ेगा कि जो सरकार बनेगी वो लोगों के काम करने के लिए बनेगी, और सरकारों से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, और सरकार का कोई मजहब होता है। जिस सरकार का मजहब कहेंगे ना, वो सरकार एक्सप्लॉइट ही खाली करेगी, वो सरकार लोगों के काम नहीं करेगी। क्यों? जो ऋषि मुनि हमारे थे या पैगंबर थे,
वो सरकारें दूसरी थी, वो लोग भी दूसरे थे। शायद न वो लोग अब इस दुनिया में आ सकते हैं, क्यों वो परलोक चले गए। वो अब तो सियासतदान का दूसरा नाम है शरणजीज। ये तो कहते हैं ना, टांग और पेंट का झगड़ा करवाएगा। इन तक रखोगे तो ये वही कराएंगे। इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि कब तक। सबको मौका दे दिया, बीजेपी को भी मौका दे दिया जम्मू ने, कांग्रेस को भी मौका दे दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, पीडीपी को भी। हम कहते हैं एक ऐसी जमात को सामने ला जो आपकी जमात है, आपकी वजह से बने और आपकी वजह से नहीं चलेगी, आप उसको कर भेजो। किसी खानदान की तो है नहीं, ये खानदान तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी कहती है हम खानदानी जमात नहीं है, पहले बाप फिर बेटे को, फिर और किसको कहते हो खानदान? नहीं, और खानदान किसको कहते हो? भाई अब 100 साल बाद जो हम में से जिंदा होंगे वो देखेंगे ना, हाँ जी पहले वो ये आज 72 साल से कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खानदान को देखा, इसलिए हम आज कह सकते हैं वो खानदानी है। अब जो 70 साल बाद आपको देखेंगे बीजेपी वालों, वो भी कहेंगे हाँ जी ये फलान का बेटा था, ये सरदार प्यारा सिंह जी का बेटा था रंधावा जी। अब उसके बाद जब तीसरी पोस्ट कहेगी ना उनके बेटे का नाम, तो खानदान तो इसी को कहते हैं ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरा रंधावा जी से कोई ये नहीं है। रंधावा जी आप बेशक खुद भी चलो और बेटे को भी चलाओ, लेकिन ये ना बोलो ना कि खानदानी जमात है। अभी 2 दिन पहले रंधावा जी ने बड़ा एक शगुफा डाला कि साहब 16,000 कनाल जमीन जेडीए की आई। ये बड़ा अच्छा है, आप 2014 से सरकार में थे, आज भी आप एमएलए हो, और बिल्कुल यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है, होम मिनिस्टर साहब के मातहत है। आप निकालो, लिस्ट निकालवाओ। क्यों नहीं निकालवाते हो? पता लगे सबको किसके पास है जमीनें। सरकार की जमीनें अगर हैं बिल्कुल निकालो, लेकिन साथ ही ये भी निकालो कि यहाँ काफी सारी जमीनें ऐसी हैं, यहाँ मंदिरों की जमीनें वो किसके अंडर है। बेटा 1 मिनट थोड़ा सा सही, मंदिरों की जमीनें किसके पास है, यहाँ ये भी निकालो। अवकाफ की जमीनें किसके पास है, यहाँ ये भी निकालो। कस्टोडियन की जमीनें किसके पास है, सब निकालो ना। फिर ये भी निकालो कि जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे आज तक क्यों नहीं उनको लैंड राइट्स दे रहे हो। हर एक चीज में आप नुक्स देखते हैं, लेकिन वो एक कहावत है, मुझमें काफी मेरे साथी यहाँ हैं, कहते हैं जिते साड़ा नूर जमाल कवा खोता सब हलाल। जहां इनकी अपनी बात है तो सब हलाल ही हलाल हो जाता है। मैं बद्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन बद्री जी को एक चीज आज बताना चाहता हूं कि ये जीरो पे जमात है, ये जीरो से शुरू करने वाली जमात है। ऐसा नहीं है, न हम वो सियासत करते हैं कि लोगों के पास जाके मीठी बात करेंगे, झूठ बोलेंगे। हमारा तो ये है कि ये खिदमत है, फी सबीलिल्लाह। खिदमत करो लोगों की, सच बोलो, और उस सच से ही हम लोगों को भी कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, खुद को भी फायदा पहुंचा। हमारी खुद गर्जी है सच बोलने में। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमारी सियासत है, नहीं, हमारी खुद गर्जी है। 70 साल, 80 साल, 90 साल जाना वहीं है, और वहाँ कम से कम ऐसे होके तो खड़े हो जाएं कि हमने आपकी मखलूक को सच बोला। ठीक है, उन्होंने यकीन नहीं किया। आज मैं देखता हूँ हमारी सियासी जमातें, हम लोग 5 साल सोए नहीं घरों में। मैं आपको सच बताऊं, हम जितनी ये जमात मेरे साथ में थी, बुरी तरह से हार गए। हारे क्यों? हमें कहा गया ये दिल्ली के एजेंट है। तो भाई हम दिल्ली के एजेंट क्यों बनेंगे? मुल्क वो हमारा, वो गुजरातियों का थोड़ा ही मुल्क है, हम उनके एजेंट क्यों बने? बल्कि वो हमारे एजेंट है। जब जम्मू कश्मीर है तब दिल्ली है, जब जम्मू कश्मीर नहीं होगा दिल्ली नहीं होगी।
गुजरात से जम्मू का दिल्ली नहीं बनती है, वरना आज़ादी 1947 में मिली थी, जम्मू कश्मीर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत पड़ी? गुजरात को तो नहीं दिया। सवाल है उनसे, इसलिए हम उस खिते से हैं जिसकी वजह से ये मुल्क है। और अगर वो ये सोचते हैं कि कोई ये हमें कहेगा दिल्ली के एजेंट है, भाई हम तो अपने मुल्क के एजेंट है, क्यों नहीं है? मेरा सिपाही जानता है, मेरा ये साथी जानता है जो RS पोरा में पहली गोली पाकिस्तान की खाता है, जो पहला गोला आता है सीने पे लेता है। मुझे क्या कोई कहेगा दिल्ली वाला कि मैं आज़ादी, या यूपी वाला कि मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ? क्या उसने मुल्क के लिए किया? कुर्बानी देना हम जानते हैं, पुंछ वाले जानते हैं, कुटवा वाले जानते हैं, करना वाले जानते हैं, राजौरी वाले जानते हैं, उड़ी वाले जानते हैं। ये लोग तो कारोबार करना जानते हैं, ताजमहल लोगों को दिखाना जानते हैं, दिखाते रहे। हम में शक्ति भी है, क्षमता भी है कि हम इस मुल्क का दिफा करेंगे और इस मुल्क को आगे भी चलाएंगे। और हमें कोई ये दर्श नहीं दे सकता है नेशनलिज्म का। हम नेशनलिस्टिक लोग हैं, गिने चुने हो सकते हैं जो आपकी सियासत के काम आते हैं, जिनसे आप वैसे बयान दिलाते हो जिससे आपको फिर वोट बटोरने में आसानी होती है। जम्मू कश्मीर के लोग कम्युनल नहीं है, हमारी एकता मजबूत है। ये कितनी ही कोशिश करें जम्मू को कश्मीर से और कश्मीरियों को जम्मू से लड़ाने की, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो लोगों ने लड़ना है। और लोग जानते हैं कि हमारी भलाई अमन अमान में, भाईचारे में। मैं एक बार फिर बद्री जी का और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मिलके कदम से कदम मिला के इस जमात को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव। शुक्रिया, थैंक यू।